हेलो पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. इट्स नीतू रेवलिया है. एंड बैकग्राउंड देख के आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा दैट ये तो मेरा रूम नहीं है और मे बी यहाँ पे तो मैं शूट करती नहीं हूँ. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट राइट नाउ आई एम इन माय कॉलेज एंड अभी मेरे लेक्चर फ्री थे तो आई थॉट कि व्हाई नॉट रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियोस. सो आई आस्क्ड यू गाइज टू आस्क मी सम क्वेश्चंस एनी काइंड ऑफ लाइक on the occasion of 1000+ subscriber. You can ask me anything what you want. So starting from basics, I have read 2-3 questions जो कि बार बार repeat हो रहे थे. Those were like first of all I introduce myself. I am Neetu and I am doing CA. I am a CA aspirant. I am pursuing CA and right now I am in my foundation level. Yes, I failed in the very first attempt of my CA foundation, but right now I am fighting back for May 2022. So yeah, that's it. So the next question is in which college I am right now. So this college is Shyama Prasad Mukherjee Delhi University in Punjabi Bagh. And another question which you guys were asking that from where I took my paid tuition class and coaching class in whatever for foundation. So I took from Chetan Malik classes in Ghaziabad as I can't take live classes because of my regular colleges going on. That's why I have taken recorded classes. Yes. Now coming to the questions that you have asked. अभी मुझे याद नहीं है तो I have my this tab in which I have your questions. So I'm just scrolling through all. So this question is asked by Dipesh Deshwani. How many hours one should devote every day for CA Foundation? सो गाइज अभी मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर करूँगी तो इट कैन बी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज आई फेल्ड. हाउ कैन यू आस्क मी? बट स्टिल आई एम आंसरिंग दैट आई वॉज नॉट डिवोटिंग माई डे इन टर्म्स ऑफ आर बट आई एम डिवोटिंग माई सेल्फ माई हार्ड वर्क इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स विच आई हैव टू कवर. If you talk about hours, so it may be like 5 to 6 hours, but productive 5 to 6 hours. So yes, that's what I did in my foundation. So the next question is asked by I like to spread happiness. I can see. So whom do you prefer on YouTube for law? Frankly, if I tell you, I never find anyone as good as I found this Chetan Malik classes. Shivali ma'am, but she have paid classes. That's why I have chosen her. So yeah. यूट्यूब पे फ्री कंटेंट लॉ सब्जेक्ट के लिए मुझे नहीं मिल पाया. इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद एनीवन ऑन यूट्यूब फॉर फ्री क्लासेस. बट इफ यू वांट टू चेक फ्री क्लासेस फॉर यूट्यूब देन वी हैव अन अकेडमी, we have grooming education, we have eKida, Unicom, and we have Virtual Prof and many other channels. ICI Tube for all those who don't know Hindi. So they have classes in English. They have covered all the syllabus in English. So if you want to check those channels, you can. And that ICI Tube is official channel of ICI Institute. Yes, so you can check it. So the next question is asked by Erin Yeager. How to restart your CA journey? So how to restart? Pack your bags, fight back again. Frankly telling you that I have started my journey again from the basics, from the roots, because maybe I can't take a chance. Just that's it. I can't take a chance. So that's why I am doing everything that a beginner should do at their beginning of CA foundation. So yeah, that is I am doing. Okay, so the next question is asked by, so this is Shyama Ojha. She is with me from the very beginning of my channel. So yes, I remember her. Thank you Shyama Ojha. So she asked DUK किस कॉलेज में हूँ एंड फाउंडेशन कौन सी परचेज की एंड रेगुलर कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करते हो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम. थैंक यू सो मच श्यामा. सो ऊपर के दो क्वेश्चन तो मैं बता चुकी हूँ कि मैंने कहाँ से परचेज की है एंड मैं कौन से कॉलेज में हूँ. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड टू मी इज रेगुलर कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करते हो. लाइक यू कैन सी अभी मेरा फ्री लेक्चर था तो मेरे लेक्चर यूजुअली स्टार्ट होते हैं 10:30 बट मैं घर से निकल जाती हूँ
7 और यहाँ पे 8 तक पहुँच जाती हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है मुझे। सो यहाँ पे आने के बाद मैं लाइब्रेरी में बैठ जाती हूँ एंड आई हैव माई टैब विद माई सेल्फ। यहाँ इसमें मेरी क्लासेस होती हैं, तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के अपनी क्लासेस अटेंड करती हूँ। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट लाइक हर सब्जेक्ट की क्लास एटलीस्ट अटेंड कर लेती हूँ रोज़। यस, तो कभी कभार आई 2 क्लासेस भी अटेंड कर लेती हूँ बिकॉज टाइम होता है क्लासेस के बीच में बहुत सारा। मैं ऐसे इधर उधर घूमने कम ही जाती हूँ, कैंटीन में नहीं बैठती मैं ज़्यादा। मैं लाइब्रेरी में चली जाती हूँ, शांति से बैठ के पढ़ती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स मेरे को इस बात के लिए पागल बुलाते हैं कि तू इतनी जल्दी कैसे आ जाती है कॉलेज, क्या करने आती है तो कॉलेज। मैं उनको बताती हूँ भाई मेरे को पढ़ाई भी करनी होती है। हाँ, तो मेरे पास 2 काम है, ऊपर से मैं एक बार फेल हो चुकी हूँ, तो आई कांट टेक अ रिस्क अगेन। मैं कह रही हूँ मैं रिस्क नहीं ले सकती। सो यस, अभी कॉलेज में पढ़ाई करूँगी, फिर घर पे जाके, बिकॉज कॉलेज में इतना वर्कलोड नहीं होता एज हम देखते हैं ना स्कूल में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, और वैसा कॉलेज में वर्कलोड नहीं होता। क्लासेस के बीच में बहुत सारे ब्रेक होते हैं और होमवर्क भी एज सच नहीं मिलता जितना स्कूल्स में मिलता था। सो या, दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग इन बिटवीन कॉलेज क्लासेस एंड after college. I manage my CA foundation classes and all. Now the next question is asked by Janki. So she asked me, please start study with me on YouTube daily target. मेरा भी क्लियर नहीं हुआ, ऑनलाइन हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। सो इस बात पे मैं कहना चाहूँगी आई एम सॉरी जानकी, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज मैं इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती। या बट आई कैन प्रॉमिस यू फॉर रेगुलर वीडियोज़ ऑन माई चैनल। रेगुलर ऑनलाइन तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय आकांक्षा। प्लीज़ आप लॉ के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। आई हैव अपलोडेड अ डेडिकेटेड वीडियो like for law, maths, accounts and BCK. You can check it on my channel. और यहाँ पे लिंक वगैरह भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय मिस्टीरियस फैक्ट। मैं CA हिंदी से करूँ या इंग्लिश में? हिंदी से पढ़ाई की है। इफ़ आई से फ्रैंकली तो वो तुम्हारी खुद की पर्सनल चॉइस है, जिसमें भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। सो यू कैन परस्यू एनीथिंग विच एवर यू वॉन्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय नो नेम। इनका कोई नाम नहीं है, ओके कोई बात नहीं, हम नो नेम से आपको बुलाएंगे। हाउ मच यू स्कोर्ड इन योर 10th and 12th एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आई हैव स्कोर्ड 91 second. I have scored how much? I don't remember really. 91.4 or something. I have my report card right now here with me. Let me check. Okay, so this is my report card. Here you can see my score. So I have scored 95 in English, 95 in Hindi, 95 in Maths. Science से तो मुझे बहुत डर लगता था, तो I got 77 in Science. Social Science में भी 95 and संस्कृत में 96. तो in total इसमें परसेंटेज नहीं लिखी हुई। I really forgot my percentage. अभी आपको मार्क्स पता है, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। एंड 12th में आई गॉट 92.5. सो यस, here is the answer of your question. Now moving forward to the next question. Next question is asked by Vishnu Krupa. Okay, so the question is, hello Neetu, recently December 21 I gave foundation exam and I failed and I am so demotivated. I can't make proper study plan for the next attempt, so please give me tips and all. Proper study plans. So पहले तो उस ट्रॉमा से बाहर आओ, उस पेन से बाहर आओ। सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करो। वो हो चुका अभी, उसको अगर हम बैठ के उसके ऊपर ही सोचते रहेंगे, स्ट्रेस करते रहेंगे, तो देयर इज़ नो वे कि आप आगे और बढ़ पाएंगे। बिकॉज उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए, जो फेल होने के बाद तक की हमें और दोबारा से स्टार्ट करने तक की जो साइकिल होती है, उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसमें ही फंस के रह जाएंगे तो ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। अभी आप डिमोटिवेटेड है, उस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उस वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और अगला फिर आपका अटैम्प्ट तब तक आ जाएगा, आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें फेल हो जाएंगे। तो ये मैंने एक वीडियो देखी थी CA अमरदीप टॉक्स की, तो उसमें उन्होंने बोला था कि ये ऐसे चलता रहता साइकिल, जिससे बाहर नहीं निकल पाते। तो मैंने उनकी बात को सच्ची बताऊँ तो बहुत सीरियसली लिया था, एंड आई फेल्ट कि इस ट्रॉमा से बाहर निकलना है और पढ़ना है, बिकॉज मैं बार बार फेल होने का रिस्क नहीं ले सकते। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय प्रियांशी. So hey, Priyanshi asked so many questions.
सो आई वांट टू नो दैट मैथ्स में एडिशनल क्वेश्चन ऑफ ICI मटेरियल भी आए हैं क्या ये, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन से. सो इफ़ आई टेल यू अबाउट द मैथ्स का पेपर, तो जो मैथ्स के पेपर में जो बुक में मॉड्यूल में जो लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट्स के क्वेश्चन होते हैं इफ़ आई से. हाँ, तो उनमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है उनको सॉल्व करने में. तो मैथ्स के पेपर में हमारे पास टाइम ही कितना होता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 1.5 मिनट होता है एक क्वेश्चन के लिए जो हमें डिवोट करना होता है. तो वैसे क्वेश्चन में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है. तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनमें एग्जामिनर को भी लगे कि 1 मिनट 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाए. तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. तो आप अगर स्किप करना चाहें तो एडिशनल क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं मैथ्स के एग्जाम के लिए. हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. The next question: why do you want to become a CA? The genuine and honest answer: I want like for money and for respect and lots of love. All the best for your attempt. आग लगा देना एग्जाम में. Thank you so much for this lovely message. So एक honest अगर आपने आंसर पूछा तो I will reply in a honest way. So I belong to a very small like village kind of place जहाँ पे इतना एजुकेशन पॉपुलर नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा अभी भी काफ़ी उसको बैकवर्ड इलाका मान सकते हैं. तभी तो मुझे कॉलेज आने के लिए भी 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है इस वजह से. तो मैं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करती हूँ. वहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं एंड हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे उसमें भी लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं. तो आई रियली वॉन्ट टू मेक माई फैमिली एंड एवरीवन प्राउड, क्योंकि उस बैकवर्डनेस से बाहर निकलने का एक ही सॉल्यूशन, दैट इज़ एजुकेशन. जब तक एजुकेशन, सो द एजुकेशन विल गिव मी रिस्पेक्ट एंड या एज वेल एज मनी तो है ही. मतलब अगर जीना है तो पैसा भी चाहिए. तो मनी इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिकॉज मैं इतने ज़्यादा बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करती हूँ. आपको लगा नहीं होगा कभी, बिकॉज माई फैमिली इज़ लिटिल, माई फैमिली इज़ रियली मोटिवेटिंग. उन्होंने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने मुझे यहाँ तक बनाया, पहुँचाया है कि मुझे आज तक फील नहीं हुआ कि मैं इतने ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हूँ. उन्होंने मुझे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा. मेरा स्कूल भी गांव से लाइक मेरे एरिया से बहुत ज़्यादा दूर था. मुझे वहाँ पे भी पहुँचने के लिए 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था एंड उन्होंने मुझे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा. तो येस, फॉर रिस्पेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रिस्पेक्ट एंड मनी. तो येस, we all want money for our basic needs and livelihood. So the next question is asked by Ayushi Chaube. So she asked, I am in 11th right now and I should prepare now should I prepare for my CA foundation? And one more question: after my 12th result, should I give May attempt or November? Which one is good? Please दी बता दो. अगर if you want to really want to pursue, तो 11th से आप जो अपना अकाउंट्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें. फाउंडेशन का जो अकाउंट्स है और 11th 12th का अकाउंट्स बहुत हद तक मैच करता है, बहुत हद तक मैच करता है. तो आप अगर प्रिपेयर करना चाहें तो अपना अकाउंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. मैथ्स भी एंड इंग्लिश तो है ही. तो ये 3 चीज़ें अपनी 11th 12th में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो. CA फाउंडेशन में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, ये मैं बता रही हूँ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नवंबर अटैम्प्ट देना चाहिए या मे अटैम्प्ट देना चाहिए? सो मेरे केस में ये था, जब कोरोना की वजह से हमारे एग्ज़ाम डिले हो गए थे, जिस वजह से वी आर स्टक बिटवीन कि हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे. तो इस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मे अटैम्प्ट. तो उस वजह से मैंने नवंबर का अटैम्प्ट दिया था. आपके टर्न आए तो आपको गुड अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा उस टाइम. तो आप अगर चाहें तो मे अटैम्प्ट के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज 3 महीने की रेगुलर कंटिन्यूस पढ़ाई इनफ है CA फाउंडेशन क्लियर करने के लिए. तो अगर आपको मे अटैम्प्ट देना है तो आप दे सकते हैं. नवंबर के लिए तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, तो आप नवंबर भी दे सकते हैं. अगर आपको मे देना है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई 3 महीने, मतलब लाइक बोर्ड्स के बाद आपको बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना है, फिर से लग जाना CA फाउंडेशन के लिए. एंड नवंबर देना है तो थोड़ा सा आप चिल पिल रह सकते हो उस टाइम, बिकॉज उसके लिए बहुत टाइम होगा आपके पास. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय मिदातवल क्रिएशन. अकॉर्डिंग टू यू विच सब्जेक्ट इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू एंड टेल मी व्हाट सब्जेक्ट विच इज लेस ओरर अकॉर्डिंग टू यू, जिसमें मार्क्स हाई लाना बहुत हार्ड है.
सो इन माई ओपिनियन सबसे हार्ड जो मुझे लगा, बिकॉज इट वॉज न्यू फॉर मी, दैट इज़ लॉ. उसको लिखना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज समझना बहुत आसान था, लिखना बहुत डिफ़िकल्ट था. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिसमें लेस स्कोर होता है, लाइक कितना भी कर लो वो, दैट इज़ मैथ्स. येस, फॉर श्योर मैथ्स. इसमें कितना कुछ भी कर लो, उसमें तो नंबर ही कम आने. So I guess that's it for the question round. I have received so many questions and I tried to answer each and every question of yours. So that's it for the video, and if you liked it then please subscribe to my channel and ऐसी videos के लिए बनी रहिए. Stay tuned. Okay, that's it. Bye.